माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा पदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा 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 जय ओम विष्णु
विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक कचार्य स्तोत्र शशि श्रीमद डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम की जय। निताय गौ प्रेमानंद हरि बोल। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। So we'll continue reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 4, the process of creation. So today is verse number 22. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Prachodita Yena Pura Saraswati Vitanvatajasya Satim Smritim Riddhi Swalakshana Pradurabhut Kilashyata Sa Me Rishinam Rishabha Prasidatam Prachoditayena Pura Saraswati Vitanvatajasya Satim Smritim Riddhi Swalakshana Pradurabhut Kalasyata Same Rishinam Rishabha Prasidatam Prachoditayena Pura Saraswati Vitanvatajasya Satim Smritim Riddhi Swalakshana Pradurabhut Kilashyata Same Rishinam Rishabha Prasidatam Prachoditayena Pura Saraswati Vitanvitajasya Satim Smritim Riddhi Swalakshana Pradurabhut Kilashyata Same Rishinam Rishabha Prasidatam Prachoditayena Pura Saraswati Vitanvatajasya Satim Smritim Riddhi Swalakshana Pradurabhut Kilashyata Same Rishinam Rishabha Prasidatam Prachoditayena Pura Saraswati Vitanvatajasya Satim Smritim Riddhi Swalakshana Pradurabhut Kilashyata Same Rishinam Rishabha Prasidatam Prachoditayena Pura Saraswati Vitanvatajasya Satim Smritim Riddhi Swalakshana Pradurabhut Kilashyata
Same Rishinam Rishabha Prasidita Prajodita, inspired, Yena, by whom, Pura, in the beginning of creation, Saraswati, the goddess of learning, Vitanvata, amplified, Ajasya, of Brahma, the first created living being, Satim Smritim, potent memory, Riddhi, in the heart, Swa, in his own, Lakshana, aiming at, Pradurabhut, was generated, Kila, as if, Asyataha, from the mouth, Sa, he, me, unto me, Rishinam, of the teachers, Rishabha, the chief, Prasidatam, be pleased. Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. May the Lord, who in the beginning of the creation amplified the potent knowledge of Brahma from within his heart and inspired him with full knowledge of creation and of his own self, and who appeared to be generated from the mouth of Brahma, be pleased with me. So now Sukadeva Goswami is saying to Bhagavan, Krishna, that may the Lord, जो creation के beginning में, Prabhupada जी सुंदर words use करते हैं, in the beginning of creation, amplified the potent knowledge of Brahma from within his heart. जैसे साउंड है ना, एक छोटा साउंड है, साउंड सिस्टम यूज करो, उसके बड़ा कर दे. तो नॉलेज इज इन द हार्ट, कृष्णा उसके एम्पलीफाई करे, कृष्णा उसके बड़ा करे. एंड इंस्पायर्ड हिम विथ फुल नॉलेज ऑफ क्रिएशन, तो ब्रह्मा जी के नॉलेज में कैसे क्रिएशन करी, and of his own self, and who appeared to be generated from the mouth of Brahma. और वो नॉलेज फिर ब्रह्मा जी के मुख से निकला. तो ऐसे लगता है कि ब्रह्मा जी नॉलेज दे रहे हैं, बट एक्चुअली इट कमिंग फ्रॉम द हार्ट, इंस्पायर्ड बाय कृष्णा. तो दैट्स व्हाई डिवोटीज जब सेवा में लगे हैं, तो इट्स एक्चुअली इट शुड बी इंस्पायर्ड बाय कृष्णा. तो डिवोटी देन कृष्णा ददामी बुद्धि योगम, तब ना कल प्रभु बोले थे, जीवनाथ प्रभु एक्सप्लेन किए थे कि ददामी बुद्धि, इंटेलिजेंस कम फ्रॉम Krishna. As we have already discussed herein before, the Lord, as the super soul of all living beings from Brahma to the insignificant ant, endows all with the required knowledge potent in every living being. A living being is sufficiently potent to possess knowledge from the Lord in the proportion of 56/4 or 78% of the full knowledge acquirable. Since the living being is constitutionally part and parcel of the Lord, he is unable to assimilate all the knowledge that Lord possesses himself. In the conditioned state, the living being is subject to forget everything after a change of body known as death. This potent knowledge is again inspired by the Lord from within the heart of every living being, and it is known as the awakening of knowledge, for it is comparable to awakening from sleep or unconsciousness. This awakening of knowledge is under the full control of the Lord, and therefore we find the practical world different grades of knowledge in different persons. This awakening of knowledge is neither an automatic nor a material interaction. The supply source is the Lord himself, Dhyam Pati. For even Brahma is also subject to his regulation of the Supreme Creator. In the beginning of the creation, Brahma is born first without any father and mother, because before Brahma there were no other living beings. Brahma is born from the lotus which grows from the abdomen of Garbhadaksai Vishnu, and therefore
he is known as Aja. This Brahma or Aja is also a living being, part and parcel of the Lord, but being the most pious devotee of the Lord. Brahma is inspired by the Lord to create subsequent to the main creation by the Lord through the agency of material nature. Therefore, neither the material nature nor Brahma is independent of the Lord. The material scientist can merely observe the reactions of the material nature without understanding the direction behind such activities, as a child can see the action of electricity without any knowledge of the powerhouse engineer. This imperfect knowledge of the material scientist is due to a poor fund of knowledge. The Vedic knowledge was therefore first impregnated within Brahma, and it appears that Brahma distributed the Vedic knowledge. Brahma is undoubtedly the speaker of the Vedic knowledge, but actually he was inspired by the Lord to receive such transcendental knowledge as it directly descends from the Lord. The Vedas are therefore called apaurushya, or not imparted by any created being. Before the creation, the Lord was there, Narayana para vyaktat, and therefore the words spoken by the Lord are vibrations of transcendental sound. There is a gulf of difference between the two qualities of sound, namely prakrita and aprakrita. The physicist can deal only with the prakrita sound, or sound vibrated in the material sky, and therefore we must know that the Vedic sounds recorded in symbolic expression cannot be understood by anyone within the universe unless and until one is inspired by the vibration of supernatural aprakrita sound, which descends in the chain of disciplic succession from the Lord to Brahma, from Brahma to Narad, from Narad to Vyas, and so on. No mundane scholar can translate or reveal the true import of the Vedic mantras, hymns. They cannot be understood unless one is inspired or initiated by the authorized spiritual master. The original spiritual master is the Lord himself, and the succession comes down through the sources of parampara, as clearly stated in the 4th chapter of the Bhagavad Gita. So unless one receives the transcendental knowledge from the authorized parampara, one should be considered useless. Vifala mata. Even though one may be greatly Vifala mata, Prabhupada. Even though one may be greatly qualified in the mundane advancement of arts or science, Sukadeva Goswami is praying from the Lord by dint of being inspired from within by the Lord, so that he could rightly explain the facts and figures of creation as inquired by Maharaj Parikshit. A spiritual master is not a theoretical speculator like the mundane scholar, but is Shrotriyam Brahma Nishtham. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Tamal Krishna Goswamiti Namine Nama Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swamiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschadya Shatarine. So Hare Krishna. So सबसे first part Prabhupada ji mention करते हैं qualities of the living entities ना. So Krishna is full of 64 qualities, and the living entity can go to the maximum of 56. 56 is 78%. Krishna is 78, yeah. So Srila Prabhupada writes here, in the proportion of 56/4 or 78% of the full knowledge acquirable. कितना हम लोग acquire कर सकता है, उसमें से हम खाली 78% रखता करें. तो बोले लिविंग एंटिटी कॉन्स्टिट्यूशनली पार्ट एंड पार्सल है. तो लिविंग एंटिटी इज एक्चुअली, प्रभुपाद मेक्स अ वेरी नाइस पॉइंट हियर ना. प्रभुपाद बोले लिविंग एंटिटी
being constitutionally part and parcel of the Lord, he is unable to assimilate all the knowledge that the Lord possesses. So, living entity कभी भगवान के बराबर नहीं knowledge possess कर पाई. Krishna is the only one who has unlimited knowledge, or 100% of everything Krishna can know. तो condition state में हम लोग के forgetfulness है. और forgetfulness है because of प्रभुपाद जी क्या वर्ड यूज किया है, चेंज ऑफ बॉडी. और चेंज ऑफ बॉडी को कहते हैं डेथ. तो अगर हम साइंटिफिकली भी देखें तो एवरी 12 years आई थिंक ना गुरु सेवा, एवरी 12 years द होल बॉडी चेंजेस. हम लोग के बॉडी के जो सेल्स है ये सब चेंज हो जाए. तो दैट्स अनदर रीजन का हम लोग यही लाइफ में भी हम लोग फॉरगेटफुल होते हैं, बिकॉज हम लोग यही लाइफ में डेथ थ्रू गो. नॉट ओनली एट द एंड ऑफ लाइफ हम लोग मरेगा, हम लोग के सेल्स एवरी डे मरते रहे. बीमारी हो जाए, फिर कैंसर हो जाए, कोई ऑल द सेल्स डाइंग while the living entity is in this body, but the body start dying. तो उसके कारण से forgetfulness हो जाए. तो this potent knowledge is again inspired. तो भगवान इसके फिर से इंस्पायर करे कि किसके वास्ते, बोले जैसे कि अगर कोई सोए जाए तो उसके फिर से जगाए पड़े ना. एक व्यक्ति जागृत अवस्था में रहे बट देन सोए जाए, तो सोए जाए तो उसके फिर से जगाओ. दैट्स व्हाट एग्जैक्टली कृष्णा इज डूइंग फ्रॉम अनकॉन्शियसनेस. तो बोले कि जो नॉलेज, अवेकनिंग ऑफ नॉलेज इज अंडर द फुल कंट्रोल ऑफ द लॉर्ड. तो हम लोग इसे सोचेगा कि हम लोग खाली बुक पढ़ लेगा तभी भी जान जाएगा, तभी भी नहीं जान पाएगा. ये भगवान जब रिवील करी तब, प्रभु भगवद गीता में बताया कि भगवान रिवील करे. तो भगवान बोले हम कैसे रिवील करता है, वर्स इन भगवद गीता, हाउ डज कृष्ण रिवील, हाउ कैन वी नो कृष्ण. भक्त्या माम अभिजानाति. कृष्ण से भक्त्या माम, बाय डिवोशनल, बाय लविंग डिवोशनल सर्विस. लविंग डिवोशनल सर्विस मतलब selfless devotional service. What is selfless devotional service? Krishna's interest is before our interest. Very simple definition of pure devotional service means Krishna ka interest pehle. So we look at what Krishna wants us to do. Krishna wants us to share this knowledge. Krishna wants us to kya bole Krishna? Man mana bhav mad bhakto madhyaji mam namaskuru. This is what Krishna wants. We become Krishna's devotee. We offer obeisance to Krishna. Krishna says, Yo me bhakta prayachati. So Krishna says, make an offering unto me. Krishna is saying, Yat karosi, yad yajnasi, yad duhosi dadasi. Whatever you are doing, do it as an offering unto me. So this is bhakti. And when you do these things, वैसे जो भी व्यक्ति, जोन भी living entity, the sooner and the greater you do this, the easier it becomes to start understanding Krishna. कोई नया डिवोटी भी से क्या है, usually हम लोग सबको इनकी experience है, when we join Krishna consciousness new, we are completely, we have just learnt about Krishna. We don't understand Krishna fully, but we have just learnt about Krishna. We have started doing everything for Krishna. Krishna becomes a center. We start chanting Krishna's name. हम लोग अपन घरे भी रहता है. Even students लोग रहा, student days में हम लोग रहा, तो हम लोग यूनिवर्सिटी में यूएसपी लाइब्रेरी में पढ़े भी जाए, तो हम लोग मुझे करीब डेस्क में कृष्ण के फोटो लगा दे, तब हम स्टडी करें. So much कि in the beginning days, so कौन सी बोले, so simple faith, Krishna should be everywhere. कृष्ण व्हीकल में भी कृष्ण लगा दो, सब जगह पे कृष्ण लगा दो. तो this is what it is. So जब नॉलेज जो है तो फुली कृष्णा के कंट्रोल में है. सो द मोर वी बिकम डिवोटी, द मोर वी बिकम सरेंडर, तो कृष्णा जैसे जानो कि वो नॉलेज की तिजोरी खोल दे. जैसे हम लोग कार्टून में देखता है ना, लड़के लोग देखे ऐसे तिजोरी खोले तो ऐसे शाइन में ऐसे निकले, ओह दिस इज ज्यूल्स इन हियर. तो ये रकम कृष्णा कॉन्शियसनेस की नॉलेज है, कृष्णा रिवील करे. तो बोले therefore we find in the practical world different grades of knowledge in different persons. So कहा है different levels of knowledge different people में है, because कि जितना कृष्ण रिवील करे है उतने नॉलेज पीपल के हो पाए. और चाबी क्या है नॉलेज रेवलेशन के? भक्ति. और भक्ति क्या है? The 18,000th verse of the Bhagavatam.
Nama Sankirtana Yasya. The chanting of the holy name and offering obeisances to Krishna. These two things. So that's how. और एक्चुअली में हम लोग सबको इन एक्सपीरियंस करना, जब when we come to Krishna consciousness, when we join Krishna consciousness, come to the front row. आगे आ जाओ. There are only few people, so we can all connect directly. तो जब कृष्ण कॉन्शियसनेस में हम लोग ज्वाइन करता है, हम लोग अपन लाइफ में सबसे ज्यादा एडवांसमेंट वही टाइम मेक करता है, सबसे ज्यादा एडवांसमेंट. Why? Because we are only chanting Krishna's name and very simply trying to save every little opportunity we get to Krishna. We come, we offer obeisance, we chant. We come, offer obeisance to the devotees, offer obeisance to Prabhupada, offer obeisance to Krishna, Tulsi Maharani, and we are chanting. That very simple process. That's the key to unlocking. जैसे जैसे हम लोग कृष्णा कॉन्स में बढ़ते जाता है, तो हम लोग कैसे लगे हैं कि हम लोग के नॉलेज बढ़े है. ठीक है, कृष्णा रिवील्स गिव्स अस मोर नॉलेज मिले हम लोगन के. हम लोग मोर नॉलेज से हम लोग कॉम्प्लिकेट होने लगता है. यहाँ पे प्रभुपाद जी बोले हैं, लास्ट चीज प्रभुपाद जी लिखे से बोले, सुखदेव गोस्वामी is praying from the Lord by dint of being inspired from within by the Lord, so that he could rightly explain the facts and figures of creation as inquired by परीक्षित महाराज. सब समय पूरा भागवतम में सुखदेव गोस्वामी एवरी टाइम रिटरेट करे है, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड और हम लोग इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट है. देयरफॉर इज ऑलवेज प्रेइंग फॉर अस टू बी ऑन द राइट ट्रैक. इतना सब नॉलेज डिस्कस करें, क्रिएशन के डिटेल्स बताए कि यहाँ से सूर्य के डिस्टेंस कितना है वगैरह वगैरह है. अगर हम लोग हेल में जाता है तो कितना रकम के हेल है, कितना कितना डिस्टेंस है, कौन कौन हेल में कौन सी हो, सब चीज भगवान सुखदेव गोस्वामी डिस्क्राइब करें. बट इस सब डिस्क्रिप्शन करते हुए द डिफरेंस बिटवीन सुखदेव गोस्वामी एंड अस कंडीशन सोल्स इज वी गेट परप्लेक्स्ड बाय द डिटेल्स. हम लोगन ये डिटेल से हम लोग इसमें बच जाता है. और वेरे सुखदेव गोस्वामी एवरी टाइम तो अजामिल के स्पेस में जाएगा, भरत महाराज के स्पेस में जाएगा, कोई भी कैंटो में जाओ, सब जगह कंक्लूजन में एक की चीज आती है, नाम संकीर्तन एंड कृष्णस प्योर डिवोशनल सर्विस. कृष्णा के सेवा और नाम संकीर्तन, सिंपली सब डिटेल डिस्क्राइब करके यहाँ पे जाइए. और प्रभुपाद जी बोले कि कहा यहाँ पे आ पाए, बिकॉज की ये नॉलेज जो है ये डिसिप्लिन सक्सेशन में आए से. तो फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पार्ट प्रभुपाद जी फिर पपट में ही ये बात बताया कि देन प्रभुपाद जी प्रोग्रेसेस टू द अदर एस्पेक्ट विच इज ही टॉकिंग अबाउट कि जो नॉलेज है वो लॉर्ड भगवान अपने सप्लाई करे, इसीलिए भगवान के वजह धियम पति ना, जैसे गायत्री मंत्र में बता धियो यो ना ना, या भागवतम के फर्स्ट वर्स बोले है परम सत्यम धीमहि. तो धीमहि मतलब इंटेलिजेंस, धीमहि मतलब नॉलेज. तो नॉलेज जो है भगवान से आ रहा है, तो भगवान रिवील करे. तो बोले कि ब्रह्मा जी इज द फर्स्ट बोर्न विदाउट अ मदर एंड अ फादर, और कोई लिविंग एंटिटी रहा नहीं. तो ब्रह्मा जी इज बोर्न आउट ऑफ गर्भदक्षाई विष्णु फ्रॉम हिज एब्डोमेन, देयरफॉर इज नोन एज आजा. तो ग्रैंडफादर लोग के आजा बोला जाए. लड़के जाने कि यही हमारे फादर के पिता लोग से आगे नहीं जाने ना. तो यूजुअली ब्रह्मा जी से आगे कोई है नहीं, खाली कृष्णा है, तो ब्रह्मा जी के आजा बोला जाए. सो इज लिविंग और उबी भी बोले ब्रह्मा जी इज ऑल्सो लिविंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, बट बीइंग द मोस्ट पायस डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. Krishna uses his devotee. So Brahmaji is also a very pious devotee of the Lord. So inspired by the Lord to create subsequent to the main creation of the Lord. तो भगवान महातत्व दे दे, फिर ब्रह्मा जी उसके engineering करे through the agency of material nature. So again Brahma ji has to be provided with the ingredients. तो ब्रह्मा जी इंडिपेंडेंट नहीं है. तो बोले मटेरियल नेचर के साइंटिस्ट लोग खाली वही रकम जान पाए है जैसे कि छोटा लड़का रहे है, छोटा बच्चा रहे है, वो देखे है
इलेक्ट्रिसिटी, लाइट देखे, बट उसके पीछे पावर हाउस है, पावर हाउस में इंजीनियर लोग काम करी से, कैसे सके खाली जस्ट बाय water falling on the turbines, electricity is produced. तो टर्बाइन सेटअप, ये सब जो इंजीनियरिंग जो उसके पीछे पे, छोटा लड़का नहीं जाने, लड़का जाने के लिए स्विच ऑन करो, बत्ती बज जाए। तो हम लोग के भी यही रकम सिचुएशन है। हम लोग के प्रभुपाद जी हम लोग के सब चीज रेडीमेड करके दे दी से, हम लोग खाली कृष्ण को स्विच ऑन करता है, वी डोंट रियलाइज व्हाट ऑस्टेरिटी, व्हाट इंजीनियरिंग प्रभुपाद हैज डन। प्रभुपाद जी रात रात जग के बुक लिखी है। प्रभुपाद जी सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन तो प्रभुपाद जी के है कि ही इज मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द डिसिप्लिक सक्सेशन। याद करना बहुत डिफिकल्ट है, प्योरिटी ऑफ द डिसिप्लिक सक्सेशन मेंटेन करो, बहुत डिफिकल्ट है। चेतन महाप्रभु बोली थे कि हम लोग जब डिसिप्लिक सक्सेशन से नॉलेज लेके, नॉलेज हम लोग प्रचार करता है, हम लोग कोई किसी का शेयर भी करता है, बिकॉज ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, तो नेचुरल है कि लिविंग एंटिटीज विल बिकम अट्रैक्टेड। लेकिन हम लोग कभी कभी भूल जाता है कि व्हाट इज द अट्रैक्टिंग एजेंट? कृष्ण's नॉलेज, कृष्णा इज द अट्रैक्शन। हम लोग भूल जाता है कि हम लोग के अट्रैक्शन जो हम लोग क्रिएट करता है बाय स्पीकिंग कृष्णा। सो कृष्णा इज व्हाट क्रिएटिंग द अट्रैक्शन ना। लेकिन वो अट्रैक्शन में हम लोग को कभी कभी क्या सोचता है कि somebody is attracted by my face, somebody is attracted by my voice। एक मेरा एक लेक्चर वीडियो पे कोई पर्सन कमेंट करा, बोले प्रभु जी आई लाइक योर वॉइस। तो मैं सोचूंगा वो मेरा वॉइस इज वेरी नाइस, बट माई वॉइस हैज नो वैल्यू इफ आई एम सेइंग मंडेन थिंग्स। इफ आई एम सेइंग मंडेन थिंग्स, देन व्हाट्स द वैल्यू? It doesn't create any spiritual benefit. It doesn't create any benefit to anyone. So that benefiting factor is Krishna. ना आज हम लोग करता है, सब चीज करता है, हम लोग प्रचार करता है, जीवनाथ प्रभु प्रचार करे, जय चैतन्य does, so many other devotees do, you do book distribution, so many things you do. How are you able to do? हम लोग सबको ट्राई करो, एक रोज खाली डिसाइड करो कि आज हम लोग कृष्णा के नहीं प्रे करेगा, कृष्णा के हेल्प नहीं सीख करेगा। गो आउट एंड डू बुक डिस्ट्रीब्यूशन, यू विल नॉट बी एबल टू डिस्ट्रीब्यूट अ सिंगल बुक। यू गो आउट एंड डू अ प्रोग्राम, यू विल क्रिएट सो मच डिस्टर्बेंस, पीपल एकदम अपसेट, जो भी नेक्स्ट टाइम आना नहीं। तो कृष्णा से मेंटेनिंग कृष्णा। एक महाराज बोल रहे थे, बोले भारत के बोले ना, इंडिया के बोले ना, बोले इंडिया इज सो रिच विद स्पिरिचुअलिटी बट इज नॉट एबल टू मेक अ डिफरेंस टू दिस वर्ल्ड। आज बोले कहा है इतना डिफरेंस नहीं कर पावे हैं, बिकॉज कि जितना जने इंडिया के स्पिरिचुअलिटी कैरी करे हैं, वो कैरी करते हुए जब हम लोग देता है दूसरे के, जो उसके क्रेडिट है वो वाला हम लोग लेता है। अगर हम लोग खाली सीख लो कि क्रेडिट बिलोंग्स टू कृष्णा, क्रेडिट बिलोंग्स टू गुरु, क्रेडिट बिलोंग्स टू डिसिप्लिक सक्सेशन, द डोर टू सक्सेस इज ओपन। जबले हम लोग, प्रभुपाद जी बोले, जैसे कभी कभी हम लोग मानो कोई चीज घड़ू उठाए के एक जगह दूसरा जगह ले जा मांगता है, तो अगर हम लोग इसे घड़ू उठाएगा, जब फॉर एग्जाम्पल वी इम्पोर्ट समथिंग ना, तो कंटेनर खाली करे, तो व्हाट वी डू, वी हायर सम पीपल टू एम्प्टी द कंटेनर। तो 4-5 के बीती लोग आवे, तो वो लोग के बोलेगा कि कंटेनर खाली करो, तो हम लोग के सजेस्ट करेगा कि तुम लोग उठाओ, ले जाके वहाँ अच्छा से रखना, डैमेज नहीं हो, ले जाओ रखो। बट कभी तीन लोग कौन जी करे मांगे, वो लोग मांगे सब लाइन में खड़ा हो जाए, तो एक उठा किसके दे दे, एक उठा किसके दे, इसके उठा दे दे, वो लोग सके 2 घंटा में पूरा 40 फुट कंटेनर खाली कर दे। उसमें सीक्रेट क्या है कि व्हेन यू, तुम यहां से उठाए के यहां पास कर देगा, यू एक्चुअली हैव नॉट कैरीड द वेट। बिफोर यू फेल द वेट, इट वाज पास्ड ऑन टू अनदर, बिफोर यू फेल द वेट, इट वाज पास्ड ऑन, सो द वर्क गोज इन अ वेरी लाइट फैशन। तो यही रकम गुरु जब डिसाइपल एक्सेप्ट करे, तो जब गुरु डिसाइपल एक्सेप्ट करे, तो ही ऑफर्स द डिसाइपल टू हिज स्पिरिचुअल मास्टर, टू हिज स्पिरिचुअल मास्टर। तो व्हेन यू गेट क्रेडिट, यू पास इट, कीप पासिंग, नहीं तो वो क्रेडिट के घड़ू के कारण फिर तुम्हें ही दब जाएगा।
दब जाएगा तो ठीक है, डूब जाएगा देन यू स्टार्ट थिंकिंग आई एम द doer, I am the doer. Whereas Krishna is saying, Krishna is the doer. तो प्रभुपाद अपने all the time प्रभुपाद जी बोले कि if I have any credit, I am trying to follow. प्रभुपाद जी ऐसे भी नहीं बोला कि I followed the instruction of my spiritual master. प्रभुपाद जी बोले I am trying to follow my Guru Maharaj. कोशिश किया, कोशिश करने. जब हम लोग इसे फील करेगा कि हम लोग कोशिश करता है, then Krishna will bless you with success. जब हम लोग फील करें कि कोशिश करता है, तो दैट मीन्स देयर इज अ मूड ऑफ ह्यूमिलिटी ना. कोई प्रभु बोलते हैं यू आर डूइंग अ वेरी गुड, नहीं प्रभु कोशिश करता है, लेकिन यू शुड स्टिल बी डिससेटिस्फाइड बाय योर सरेंडर. जहां तुम सेटिस्फाइड हो जाएगी, नाउ आई एम अ सरेंडर्ड डिवोटी, गड़बड़ हो जी, इट इज नॉट इनफ. अभी तो यहाँ प्रभुपाद जी पोपट में बताए दी से हम लोग कितना मैक्सिमम जा सकता है, 78%. दैट मीन्स हम लोग के सरेंडर भी अगर देखेगा, हम लोग 100% सरेंडर कभी हो नहीं पाएगा, हम लोग 78 ही जा पाएगा. उतने हम लोग के लगे एबिलिटी है. हम लोग बोले फुली सरेंडर हो जाओ, मतलब 78% सरेंडर हो जाओ. 78% कितना है? ए ग्रेड है, बी है, ए भी नहीं है, बाय ग्रेड है. ए कितना है? बाय यूनिवर्सिटी में ग्रेडिंग कहते क्या गए, 80 इज ए ना, 80 ऊपर कि 75? How get 78 to 82. ओके, अच्छा प्रभु भगवान बोले अच्छा आई के 22 तो छू पाएगा लेकिन फिर भी गैप है, 78 to 100 देयर इज अ गैप. तो अगर एंड दैट गैप इज व्हाट all Krishna's pure devotees keeps everyone going. Even Radharani is the best devotee, lekin she wants to do more. She wants to do better. She wants to create a new variety for Krishna. Krishna is what? वो प्रार्थना है ना, जय कृष्णा कृष्णा. तो उसमें कृष्णा के डिस्क्राइब पे बोले नव नव रंगी. कृष्णा इज व्हाट? कृष्णा इज अभिनव. अभिनव मीन्स कृष्ण who enjoys variety. वैसे खाली दाल भात से नहीं काम चली ना, पनीर रहे मांगे, सब चीज रहे, वेराइटी रहे. The other way to do variety is do khichdi. Put everything there, all variety. तो पॉइंट है. तो प्रभुपाद जी यहाँ पे तो देन प्रभुपाद says, प्रभुपाद इसके बोले the pure devotee is the awakening. तो बोले हम लोग एक चाइल्ड के रकम इलेक्ट्रिसिटी के देख के हम लोग सोचेगा कि दिस इज इट, बट उसके बिहाइंड कुछ है. तो बिहाइंड एवरीथिंग देयर इज कृष्णा. बिहाइंड आवर डिवोशनल सर्विस, बिहाइंड हम लोग के सिचुएशन, बिहाइंड आवर नॉलेज इज द डिसिप्लिक सक्सेशन ना. हम लोग तो परम पीवा है नहीं, तो वी डोंट गेट कनेक्शन लाइक ब्रह्मा टू कृष्णा, दैट कृष्णा इज डायरेक्टली playing the flute and getting into our ears and our heart is revealing the information. It doesn't happen like that for us. We are conditioned. और हम लोग खाली condition नहीं है, हम लोग तो time immemorial से conditioned है. आफ्टर भगवान के क्रिएशन देखे कि तो हाफ ऑफ ब्रह्मस टाइम चला गया है, तभी भी हम लोग यहाँ है. सत्युग द्वापर त्रेता चला गया, तभी भी हम लोग यहाँ है. कितना टाइम चला गया, तभी भी हम लोग यहाँ है. तो खाली मटेरियल वर्ल्ड में आओ मतलब यू आर कंडीशन. हम लोग की सिचुएशन और भी खराब है, कंडीशन से भी कंडीशन है हम लोग, एकदम पतित है. तभी से चैतन्य महाप्रभु हैज टू कम कि अच्छा चैतन्य महाप्रभु बोले लोग के माज के तो नहीं सफा कर पे कोई रकम से, अच्छा सारे के प्रेम धन के खजाना ही खोल दो, गो जाओ, जस्ट गो फॉर हरि नाम, टेक होली नेम एंड टेक द गाइडेंस ऑफ कृष्णा. तो हम लोग इनके ओपन कर दिए. अदरवाइज भागवतम और भगवद गीता भी तो इट वॉज द राइट ऑफ द ब्राह्मणस टू स्टडी. प्रभुपाद जी इसके अंग्रेजी में कहे संस्कृत से बाहर निकाल. प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु से भी मर्सीफुल है, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दी तो आज हम लोग मिल गए, नहीं तो हम लोग तो संस्कृत नहीं जानता रहा ना. तो वी वुड हैव, इट वाज सो डिफिकल्ट टू एक्सेस कृष्णा. Again, it's a very good point to realize how difficult it is to access Krishna. All the scriptures, Krishna's language is Sanskrit. या तो हम लोग बोलेगा Krishna's language is love, हम लोग के तो लव है ही नहीं है, हम लोग के तो खाली मटेरियल सब्जेक्ट मेटा के लव है. तो एक्सेसिंग कृष्ण इज सो डिफिकल्ट. लेकिन ये तो प्रभुपाद जी के कृपा हो गए है कि हम लोग के लव नहीं है तभी दे दी से. चैतन्य महाप्रभु देखे हम लोग के लव नहीं है तभी भी दे दी से.
एक्चुअली कभी कभी पीपल ये टेक्निकल डिस्कशन में हो जाए ना, ओ शुड बी से राम फर्स्ट और कृष्ण फर्स्ट. एक्चुअली जाके वैदिक लिटरेचर्स में देखेगा राम इज चांटेड फर्स्ट, कृष्ण इज चांटेड. But this is the reason, now you can understand, this is the reason why Chaitanya Mahaprabhu gave us Krishna directly. Krishna is the Supreme Personality. Chaitanya Mahaprabhu hum Krishna directly did this. Chaitanya Mahaprabhu is the one who said, Krishna first, first get attracted to Krishna. Krishna means all attractive. Ram means raiser of pleasure. So first get attracted to Krishna, then you will become happy, blissful. तो चैतन्य महाप्रभु उसके डायरेक्टली हम लोग के वास्ते टेला मेक कर दिस. अगर चैतन्य महाप्रभु टेला मेक नहीं करता तो हम लोग के नहीं एक्सेप्ट होता. प्रभुपाद जी हम लोग के वास्ते फूड फॉर लाइफ नहीं करता, हम लोग तो डेड रहता. तो प्रभुपाद इज द वन हु कॉज्ड ऑल दिस थिंग्स टू हैपन. Somebody was telling me, na, we have, Mataji was trying to run a program कि अच्छा जन्माष्टमी के let's do prasad distribution to different schools. So some dona was saying, feed the hungry. What's the purpose of giving food to people? I said, he needs to understand we are not giving food. We are distributing Krishna's mercy. It is sanctified food. And sanctified food के effect क्या है? प्रभुपाद जी यहाँ बोले, mundane sound vibration एटमोस्फियर में से खाली मटेरियली सके कैच कर पाए. सटल जो स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन है, उसके इफेक्ट कैसे कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट करे. हम लोग के कॉन्शियसनेस कैसे अपलिफ्ट है? बाय द ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन ऑफ द होली नेम. कैसे भी हम लोग जान नहीं पाया. कैसे हम कैसे बुरा आदत लोग छूटे लगा, हम लोग जान नहीं पाया कैसे हो लगा. कभी कभी तो सबको बैठ के सोचे हम कहाँ रहा, कहाँ हो गया. ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. जय श्री जय नमः विष्णुपदाय कृष्ण प्रसाद.
गोविन्दम् आदिपुरुषं पुरुषं